Take care of yourself. Don't go out. It's too cold outside, and keep yourself fit and fine. Keep healthy diet and don't forget to study and learn. With this, we start our class today. We will take geography section. Last in chapter 7, we learned about human environment, which was related to transportation, communication and settlement. We have already made the projects related to that. Today, you will learn about human environment, its interaction, how people differ from place to place, how they are used to with that particular region, what are their natural vegetation, what are their food, what type of wildlife are found at that particular places. In this chapter, we will learn about two types of places, two types of region. That is tropical region and subtropical region. In tropical region, we will learn about Amazon basin. Amazon basin, which is situated in South America, it is the largest basin of the world and it is spread to many parts of South America and in the northern part of South America. Before starting or before giving a deep view about Amazon basin, let us know what all topic will be covered in this video. Today we will learn about where it is situated. What is the climate exactly there? Why it is known as rainforest and what type of wildlife you find in that region? And how the people dwell there? What are the lifestyle of the people? How they live? What food they eat? That all we will learn in this chapter. Now shifting to that, let us start. Let us learn exactly what where the South America is situated. We see in the globe, the latitude is divided in different zones. This equator, which is in the middle of the globe, the 10° north and 10° south. This region is known as tropical region. And why the Amazon basin is said to as tropical Amazon basin? Because the Amazon basin is situated somewhere here. It is situated somewhere here. So, as it is situated near the equatorial region, it is known to be equatorial region basin also. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका है वो कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे 10° नॉर्थ 10° साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे कहीं लाई करता है और ये जो इक्वेटर है which pass through this region and this region is Amazon basin, which we will see here in this map. I have made a map here and I will show you that where exactly the Amazon basin and where it is draining. Now here basin. These all are the areas where the basin are there and somewhere in the basin is near the Brazil. All the tributaries of river Amazon, they merge here and they flow through here and they fall into Atlantic Ocean. Means this part where the river merged to ocean is known as mouth of the river. So Amazon basin, as it is situated in equatorial region, we find rainfall throughout the year. Here the forests are very dense. यहाँ पे जो इक्वेटर रीजन है तो डायरेक्ट सनरेज जो पड़ते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेन होता है और कंटिन्यूअसली रेन की वजह से ये एरिया में हमेशा जो है रेन फॉरेस्ट जो होता है वो हरा भरा रहता है एवरी टाइम। मीन्स दीज रीजन आर एवरग्रीन रीजन। मीन्स ये जो फॉरेस्ट है दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो, रेन फॉरेस्ट ऑल्सो एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो। यहाँ का जो क्लाइमेट है जो डे में होता है ना, यहाँ पे डे में काफी हॉट होता है एंड ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे, काफी गर्मी लगती है और इसी गर्मी की वजह से यहाँ के जो नियर
dwelling here में सारे तरह के wild animals ही यहाँ देखने मिलते हैं। उसका रीजन एक तो ये है कि this forest is dense forest and dense forest में ज्यादातर wild animals ही dwell कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स या जो पेट एनिमल्स टाइप के तो वहाँ पे ना के बराबर ही मिलेंगे। अब ये सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे यहाँ dwell करते हैं। एक जो यहाँ रेन फॉरेस्ट की जो खासियत है, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो काफी घने होते हैं, मतलब इतने घने होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पेड़ है, बुशेस है, हर्ब्स है, काफी यहाँ पे नदियाँ भी बह रही है और रिवर आर फ्लोइंग है। तो यहाँ जो पेड़ होते हैं ना वो इतने घने होते हैं कि ये जो पूरा ऊपर का एरिया होता है ना उसे कैनोपी कहते हैं। और इस कैनोपी की वजह से मींस ये ऊपर ऐसा एक छत जैसा दिखेगा, ऊपर से सनलाइट से देखेंगे या ऊपर किसी एयरवे से हम जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है पूरा हरे हरे पेड़ हरियाली जैसा दिखेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि सन रेज जो है वो यहाँ पे लैंड पे आ ही नहीं पाते हैं कई बार, और इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स भी है ना वो ज्यादातर इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो विदाउट सनलाइट ऑल्सो दे ग्रो। और यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रीज हैं वो अपर की सनलाइट से ही अपना जो है फोटोसिंथेसिस और जो साइंटिफिक जो अपना होता है वो सब अपना कैरी ऑन करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिए कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर मेहनती होते हैं। एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि पहले के टाइम पे यहाँ पे लोग खेती नहीं करते थे, एग्रीकल्चर वॉज नॉट टेकन प्लेस। तो एग्रीकल्चर ना होने की वजह से क्या होता था कि ये लोग ज्यादातर जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है उसी पे ये लोग निर्भर रहते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बट एज टाइम पास्ड इन 1970 अराउंड 1970 गवर्नमेंट देयर दे शिफ्टेड इंडिजिनस पीपल मींस वहाँ पे जो ऑलरेडी जो पहले से रह रहे थे लोग उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह भेजा गया और उन लोगों को ये अलाउ किया गया कि वो अपना जो काम करते थे वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इनका जो बेसिक काम होता था वो होता था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये पेड़ का जो फॉरेस्ट का मैंने लोकेशन बताया, ये लोग क्या करते हैं दे कट एंड बर्न सम पीसेस ऑफ लैंड फ्रॉम हियर। कुछ पेड़ को काट देते हैं, कुछ बुशेस को काट देते हैं और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं सो दैट द सनराइज कैन फॉल डायरेक्टली ऑन द लैंड। दिस लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर। और इसी तरह से ये लोग अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लग गए। पीपल हियर, वुमेन हियर वर engaged in field work, agriculture work. Men and women together work on field and they started doing agriculture and cultivation. But ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया। मुद्दा मीन्स people started cutting trees. जो एक environment balance है ना वो यहाँ पे डिसबैलेंस होने लग जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए, ध्यान रखते हुए कुछ चीजों पे रोक लगाई गई है। अमेज़न बेसिन में जो फॉरेस्ट है, अमेज़न बेसिन या एवर ये जो रेन फॉरेस्ट है इन पे कुछ रोक लगाए गए ताकि लोग बिना किसी परमिशन के ये बर्न एंड स्लैश जो एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा ना करने लगे। इससे क्या होगा कि जब लोग ज़्यादा कटिंग करने लगेंगे, ज़्यादा पेड़ कटिंग होगा तो ये जो पूरा जो बेसिन है ना, ये जो पूरा एक बैलेंस बना हुआ है एनवायरनमेंट का, इक्वेटोरियल रीजन का, ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए हैं। एंड नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दिस आल्सो। पीपल देयर आर गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉट कटिंग टू मच ऑफ ट्रीज। दे आर इन्वॉल्व इन फॉरेस्ट रिजर्वेशन मीन्स सारी चीजें ये लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन नाउ लेट अस recapitulate all the part. We learned about tropical region. Where in tropical region we learned about Amazon basin. Okay. In Amazon basin we learned where it is situated. It is situated on the equatorial region between 10 degree north and 10 degree south. Now here one more thing was left, that the water which comes out of
जाके मर्ज हो जाता है। और फिर फाइनली वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट ऑफ अमेज़न बेसिन। क्लाइमेट कैसा था? डे हॉट है, नाइट लो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी तो उतनी ही रहती है। रेन फॉरेस्ट में इस तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। वी लर्न अबाउट दिस आल्सो। वहाँ के पीपल जो है मेलोका टाइप के जो है सेटलमेंट्स के लिए अपने घर बनाते हैं जो स्टीपी होते हैं, स्लोपी होते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो ज़्यादा वहाँ पे रुक ना सके, उनकी छतों पे ना रुक सके और वो फ्लो हो जाए। और फाइनली वी कवर्ड ऑल द पार्ट। एनीथिंग इज लेफ्ट? नो, नथिंग इज लेफ्ट। सो विद दिस वी एंड विद आवर अमेज़न बेसिन पार्ट, tropical region. In next part we will learn about subtropical region, which is our India. Our India, Ganga Brahmaputra basin. Till then